Laws of kinetic friction. The magnitude of kinetic friction is directly proportional to the normal reaction acting between the objects in contact. Magnitude of kinetic friction is directly proportional to the normal reaction, that is weight, acting between the two objects in contact, and proportionality constant is coefficient of kinetic friction mu k. Kinetic friction is independent of surface area in contact. Kinetic friction is independent of speed of sliding or rolling object, assuming that heat produced during motion is not affecting the surfaces in contact. Kinetic friction depends on the nature of material in contact and on the surface finish. In case of viscous fluids, internal friction arises due to relative motion between the layers of the fluid. This internal friction of a fluid is known as viscosity. We are going to learn about viscosity in next book. Laws of limiting friction. कब होता है limiting friction? Motion is about to begin. The maximum amount of static friction is known as limiting friction. Then it becomes constant, becomes little less than the limiting friction, kinetic friction. Kinetic friction से भी एक छोटा फ्रिक्शन होता है, पता है, जिसकी वैल्यू कम होती है. नहीं, actually that is what I'm talking about is rolling friction. Rolling तो कहीं भी हो सकता है. Rolling friction is less than sliding friction. बट ये दोनों में काइनेटिक फ्रिक्शन ही अप्लाई होगा, रोलिंग हो या स्लाइडिंग हो, क्योंकि यहाँ पे तो सरफेसेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है. सो वेदर द कॉन्टैक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ रोलिंग और स्लाइडिंग डजंट मैटर. Magnitude of limiting friction between any two objects in contact is directly proportional to the normal reaction acting between them. For the same reason, more force is required to move a heavier object and vice versa. So F is directly proportional to N. The direction of limiting friction is always opposite to the direction in which object is on the verge of having relative motion. The force of limiting friction is independent of the area in contact. The force of limiting friction between two objects in contact depends on the nature of material of objects in contact and on their surface finish. बाकी सब सेम है इसमें. सरफेस रफ है या स्मूथ है, उसका फिनिश कैसा है, नेचर ऑफ द सरफेस. Yes. The static friction has no fixed magnitude or direction for a pair of objects, whereas kinetic friction has a fixed magnitude. Static friction has no fixed magnitude. It is adjusting in nature. Also, its direction depends on the direction of application of external force. Its direction is always opposite to the applied force, and the magnitude is equal to the force applied on the object, and hence it is a self-adjusting force. Nature उसका self-adjusting. Friction is a necessary evil. Advantage is that we are able to walk due to friction between our feet and the surface. Brakes in automobiles are based on friction. It would not be possible to stop a moving vehicle otherwise. Adhesives, which are used to stick things together, adhesives, glue, used to stick things together work only because of the friction. Things will not be able to stick together if there is no friction. We are able to write on a paper or a blackboard due to friction only. Sandpaper also works on the basis of friction and is used to clean the surfaces. Necessary evil. Disadvantages of friction. Sole of the shoes wear off due to the friction between the floor and the shoe sole. Yes, वो भी घिस जाते हैं.
Electrical appliances and other materials heat up due to friction between the mechanical parts and their efficiencies decrease and they use more energy. Reducing friction. Polishing the surfaces reduces the friction between them because it makes them smoother. Lubricating the surfaces of machineries with oil and grease makes the surface smooth and decreases friction between the machinery parts. Air friction can be reduced by adapting the aerodynamic shapes of rockets, airbuses. In machines, sliding friction can be reduced by using ball bearing wherever possible since rolling friction is less than sliding friction. एरोप्लेन्स जो होते हैं ना पैसेंजर एरोप्लेन्स उनको एयरबस बोलते हैं. To slide a heavy block placed on a rough surface requires a lot of force, whereas it is quite easy to move a wheel of the same mass as of the ऑब्जेक्ट ऑन द सेम फ्लोर. व्हील को मूव करना बहुत इजी है, ब्लॉक को सेम मास के ब्लॉक को स्लाइड करना डिफिकल्ट है. द ब्लॉक स्लाइड्स वेर एज द व्हील रोल्स. इन रोलिंग मोशन देर इज नथिंग लाइक रबिंग ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट. there is a single point of contact or line of contact between wheel and the ground. The wheel's point in contact with the ground remains at rest if observed from the ground. The friction in the case of rolling is less as compared to the kinetic friction. Sliding friction. स्लाइडिंग में जो एग्जैक्टली सेम पार्टिकल्स कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा. हाँ क्या होता है तुम बोलो. Kinetic is basically friction between two surfaces due to their relative motion. Kinetic अलग है, ठीक है. Sliding is a part of kinetic friction, type of kinetic friction. So sliding में two surfaces are always in contact and the surfaces, the same particles are contact with the surface. The particles do not change their position of the sliding body. Exactly. They are same and greater as compared to the rolling friction. In rolling friction, the particles keep on changing. So the wheel gets, you can say, worn off throughout its circumference, not only in one part. But if you see the soles of the shoes, they get worn off only at certain area where your body weight is actually greater. Yeah, तो ये फर्क है. अब इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हमने थोड़ा बहुत देखा था पहले, बट यहाँ पे हम लोग जो स्लाइडिंग है विच टेक्स प्लेस विथ हेल्प ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी, ग्रेविटी की वजह से जो स्लाइडिंग होता है उसको स्टडी करने वाले. सो सपोज ये अपना बेंच है, इफ आई होल्ड इट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा तो वो कब स्लाइड होता है और कब तक स्लाइड नहीं होता है ये हम स्टडी करेंगे. और इसमें अगर एक बार स्लाइडिंग शुरू हो गया फिर वो कंटिन्यू होता जाएगा. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी, पुल ऑफ ग्रेविटी और वेट. मतलब यहाँ पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? mg, बॉडी का खुद का वेट, ठीक है. सो इसमें अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होती है. बॉडी के खुद की वेट के वजह से स्लाइडिंग होना और उससे फ्रिक्शन जनरेट होना कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल, मींस वेरी गुड, यू कैन से बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं इससे. एक्सटर्नल फोर्स तो हम अप्लाई करेंगे ही, बट अगर इंक्लाइन प्लेन कर दिया तो बॉडी खुद स्लाइड करने लगेगा. तो कब स्लाइड करेगा, कब, कौन से एंगल पे वो स्लाइड शुरू होगा, कौन से एंगल तक वो स्लाइड नहीं होगा, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बॉडी के लिए. सो एंगल ऑफ रिपोज, ये थीटा है, एंगल ऑफ रिपोज इज थीटा. ओके,
is the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal so that object placed on it just begins to slide down. ठीक है, मतलब जैसे ही तुमने वो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बढ़ाया और एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा एंगल बनता है इंक्लाइन प्लेन का जहां पे वो स्लाइडिंग मोशन जस्ट शुरू होता है, बस वही एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं. We can also define it as maximum angle of inclined plane with the horizontal so that the object placed on it is not able to slide down. Both the above statements mean the same. Maximum angle till the object doesn't slide or the angle at which the body just begins to slide. It's same thing. तो ये फिगर में एक ब्लॉक है जिसका मास m है. It is kept on the inclined rough surface. We can see that the weight mg of the block is acting in vertically downward direction. One axis is selected along the surface or inclined plane, other axis is selected normal or perpendicular to the inclined plane. दिख रहे हैं दो एक्सिस तुम्हें? तो क्या mg को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं उसके कंपोनेंट्स में? हाँ, लेकिन कैसे कर सकता हूं उसको थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें. यही फिगर में हम लोग समझेंगे mg को रिजॉल्व कैसे करना है. ठीक है, सपोज ये वाली लाइन को मैं नीचे प्रोड्यूस करता हूं, ये वाले साइड को यहां पे प्रोड्यूस करता हूं. क्या ये एंगल 90 है या नहीं है? हाउ कैन यू से दैट? हाँ, तो mg हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और वो जो नीचे वाली लाइन है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर ही होता है वेट. तो ये 90 है और ये क्या है? थीटा. दैट इज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग. तो मुझे बताओ कि ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. करेक्ट है. क्यों 90 माइनस थीटा? क्योंकि ये 90 ये थीटा एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा. अच्छा, अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा? अब सुनो, ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें, ये वाली लाइन, ये जो ऑरेंज लाइन पे मैंने बनाया है, ये क्या है? दीज आर द या वर्टिकल सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बीच का एंगल कितना होता है? 90. ये 90 में से वन ऑफ द एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो अदर दूसरा कितना होगा? हाँ, तो ये इसीलिए थीटा है. ये थीटा क्यों आया, कैसे आया, वो भी तो क्वेश्चन बनता है ना. तो मैंने ये प्रूव किया कि ये थीटा है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि थीटा आया कैसे. एग्जैक्टली exactly. ठीक है, सो हमारा जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. अब मैंने एक एक्सिस किससे पैरेलल ले ली? इंक्लाइंड प्लेन से, और दूसरी एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर वाला जो एक्सिस है वहां पे जो कंपोनेंट एक्ट करेगा दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ mg, so that component will be mg cos theta. You agree with that? कैसे? अगर वो पर्सपेक्टिव से देखा तो वो उसके अपोजिट है, मतलब क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल. थीटा को देखना है अपने को, थीटा के वजह से हम लोग ये कंपोनेंट बना रहे हैं. थीटा नहीं पता होता तो कंपोनेंट नहीं बना सकते थे हम. सो ये mg cos थीटा फिक्स्ड है. हमेशा याद रखना कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इंक्लाइन प्लेन से वो mg cos थीटा ही होगा, और जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट होगा वेट का वो mg sin थीटा ही होगा. क्यों? क्योंकि ये थीटा है. ये थीटा इसलिए बिकॉज ये थीटा है, और ये थीटा इसलिए हुआ बिकॉज हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से सब वेरीफाई किया. राइट, तो यही होगा सिनेरियो हमेशा. ठीक है. अच्छा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा क्या है? इट्स द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक. तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा है, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, तो बचा कौन सा फोर्स? हाँ, तो एक mg sin थीटा है और mg और f है. F is the force of friction exerted by the, yes, by the inclined plane on the block.
ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे जब तक, तब तक ये मूव नहीं करेगा। हाँ, थी साइन थीटा से, मतलब इसको एफ को एम जी साइन थीटा से छोटा होना पड़ेगा। हाँ, अब एम जी साइन थीटा, याद रखो एक चीज, एम जी साइन थीटा, इसमें एम क्या है, वो तो चेंज हो नहीं रहा, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, वो भी चेंज नहीं हो रहा, तो फिर किस पे फर्क होगा, किस पे डिपेंड करेगा ये सब कुछ, एंड साइन थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जैसे जैसे तुम थीटा बढ़ाओगे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मुझे एम जी साइन थीटा को बढ़ाना है, एफ से बड़ा करना है, तो मुझे साइन थीटा को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थीटा को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही तो होता है कि एंगल ऑफ रिपोज जैसे 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 बढ़ता है, साइन थीटा बढ़ता है, एम जी साइन थीटा बढ़ता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बढ़ता है, बिकम्स मोर देन द फ्रिक्शन, उतना ही रहता है, फ्रिक्शन कम नहीं हो सकता, फ्रिक्शन को हम लोग, यस एग्जैक्टली, we increase theta in order to increase the value of horizontal component along the inclined plane against the friction, so that friction remains lesser than it and the object slides down. एक बार स्लाइडिंग होना शुरू हो गया और एंगल में हम छेड़खानी नहीं कर रहे कुछ भी, तो स्लाइड होता ही रहेगा। लेकिन अगर अगर एंगल हमने फिर से कम कर दिया सच दैट साइन थीटा कम हो गया और एम जी साइन थीटा कम हो गया एफ से, तो वापस स्टैटिक फ्रिक्शन का सिचुएशन आ जाएगा, वापस हाँ रिटार्ड करके स्टॉप हो जाएगा। एब्सोल्युटली, लगेगा ही, जितना टाइम तुम्हें एंगल को कम करने के लिए लग रहा है, उतना टाइम उसको अपनी स्पीड कम करने के लिए लगेगा। सही है, इजी है। तो एक चीज यहाँ पे क्लियरली वो लोग ने लिखा है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये हर केस में ट्रू रहेगा, हर केस में, चाहे ब्लॉक स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे ब्लॉक साइड स्लाइड कर रहा है या ना कर रहा है। यहाँ पे n इज इक्वल टू एम जी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस होती तब n इज इक्वल टू एम जी होता है, ये तो इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है। किधर से, ऐसे, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, मतलब कैसे भी इंक्लाइन रखो तुम, उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम या जो भी हम बोल सकें उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स ऐसे ही बनेंगे, और एन एम जी कॉस थीटा ही रहेगा, कुछ भी कर लो तुम। The component of the weight along the plane mg sin theta is trying to move the block down the incline mg sin theta, but friction acting parallel to the plane is trying to oppose it. Suppose the angle of inclination theta of the plane is increased slowly, then the driving force mg sin theta also increases, and hence opposing force F remains equal to it, so that the block may not slide down the plane. When the block is not sliding down the plane, we can say that F is equal to mg sin theta in the position of rest, जब ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। तो ये F क्या है, static friction, static friction. If mu is the coefficient of friction between block and inclined plane, and the maximum possible magnitude of friction can be written as F max is equal to mu times n, or mu times mg cos theta. At a particular value of theta naught, driving force mg sin theta naught becomes equal to the maximum opposing force mu mg cos theta naught, क्योंकि F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n है, F की वैल्यू mg साइन थीटा है, n की वैल्यू mg cos थीटा है, तो ये दोनों के बीच में भी रिलेशन है, और उनको कनेक्ट करने वाली क्वांटिटी म्यू है, ठीक है। सो mg साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg cos थीटा नॉट, और ये थीटा नॉट क्या है, ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम ऑपोजिंग फोर्स से इक्वल हो जाता है थीटा नॉट पे,
अब अगर एक भी फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री तुमने थीटा बढ़ाया तो स्टैटिक से काइनेटिक हो जाएगा. हियर एंगल थीटा नॉट इज द एंगल ऑफ रिपोज, द मैक्सिमम एंगल एट विच द ब्लॉक कैन बी एट रेस्ट is the angle of repose, and mg sin theta naught is equal to mu times mg cos theta naught, or tan theta naught is equal to mu, or theta naught is equal to tan inverse of mu. ये है तुम्हारे एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला. थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू. बट म्यू पता होना चाहिए. म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन. अब म्यू यहां पे बोला नहीं है एस है या के है, ऑफ कोर्स हम ऐसे ही मानेंगे उसको. Given the angle of inclination theta naught is the angle of repose, and when the angle of inclination of plane is increased beyond theta naught, then the block begins to accelerate down the plane, and the acceleration is given by mg sin theta minus mu mg cos theta is equal to ma. ये कहां से आया? नेट फोर्स. नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड. मतलब डाउनवर्ड वाला फोर्स बड़ा होगा अपवर्ड वाले से, मतलब mg साइन थीटा ज्यादा होगा किससे? f से. लेकिन f क्या है? म्यू इंटू एन. एन क्या है? mg cos थीटा. सो mg साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स mg cos थीटा इज इक्वल टू ma. ma क्या है? नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यू कैन टेक आउट m कॉमन फ्रॉम बोथ द साइड, cut it, and you will get the value of net acceleration. So whenever the block is sliding down, you can find net acceleration at that particular angle, which is g sin theta minus mu g cos theta, net acceleration. We can see that above acceleration is independent of mass of block and depends only on coefficient of friction and theta. सिर्फ दो चीजों पे नेट एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, म्यू पे और थीटा पे, और किसी पे नहीं. Note that in above discussion we are assuming kinetic and static coefficient of friction to be equal. So you need to note down this. Without this it will be difficult to solve problems. तो जो भी डेफिनेशन है, डायग्राम है, अच्छे से नोट करके अच्छे से बना के लिखो. पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट yes you have to change certain things.
डन। ठीक है, नेक्स्ट ऑनलाइन होगी अब, मंडे नहीं होगी कोई क्लास, ट्यूसडे से फिर नेक्स्ट मंडे रिज्यूम हो जाएगा क्लास। आज शाम को है ना केमिस्ट्री। होगा होगा, क्लास खुला रहेगा। ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है म्यू का, F/R या फिर MA/mg। हाँ, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो म्यू की वैल्यू A/g से भी मिल सकती है। इंटरेस्टिंग है फॉर्मूला। सो मुझे लगता है वो लोग ने डिराइव करने के लिए म्यू के, म्यू जी या म्यू के जी जैसे भी लिखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस ए लिया होगा। फिर म्यू की वैल्यू में जी साइन थीटा बाय जी कॉस थीटा डाला होगा माइनस ए बाय जी कॉस थीटा। सही है ना? जी जी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। सो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा माइनस ए बाय जी कॉस थीटा। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया होगा? हाँ तो पूरा लेके मैंने सेपरेट भी तो किया है उसको। जी साइन जी कॉस थीटा नीचे दोनों में ये कर दिया ना मैंने, फिर कट किया। नहीं लेकिन tan थीटा क्या होता है? म्यू ही होता है ना, म्यू tan थीटा होता है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है जी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है डायग्राम में?
ये कैसे आया फॉर्मूला MA/mg? मतलब ये वाले फॉर्मूला में म्यू की जगह पे mg साइन नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू mg कॉस थीटा। हाँ सही है, सही है, वैसे तो आ सकता है, सही है। सो म्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू mg कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, mg कॉस थीटा। सही है, यही है रिलेशन। तो इससे क्यों नहीं आ रहा है फिर म्यू का वैल्यू? हम्म, काइनेटिक, काइनेटिक नहीं, लेकिन ये जो आ रहा है ना मेरे को वैल्यू यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है, tan थीटा म्यू और कट हो जाएगा, तो क्या आएगा पता है, g cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, और ये भी ट्रू है। ये क्यों ट्रू है पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। ये किसका डायरेक्शन है, ए का, सॉरी जी का, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, थीटा, सॉरी ये क्या है, 90 माइनस थीटा। तो मतलब ये वाला जो डायरेक्शन होगा, दैट दैट इज जी साइन थीटा, एग्री, जी साइन थीटा होगा, ये अगर जी है तो ये जी साइन थीटा है, ओके। लेकिन जी साइन थीटा क्या है, जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए। क्यों ए, क्योंकि ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे विथ एक्सेलरेशन ए विच इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये अगर जी है तो ये जी साइन थीटा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, जी साइन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज जी ऑफ 90, जी ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कैसे बन रहा है ये रिलेशन? हाँ तो मैंने, ओ जीरो आएगा वो साइड, अच्छा 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 अच्छा, ओ वन नहीं है वहां पे, जीरो है, इसके लिए नहीं बन रहा है ये। ये इससे म्यू का वैल्यू निकालना थोड़ा स्ट्रेंज है, मतलब a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, सो म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस ए। एक्चुअली यहां से निकालना चाहिए म्यू का वैल्यू mg, बट फिर भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोगों को तो डायरेक्टली a बाई जी आ रहा है, a बाई जी।
हम्म हम्म ठीक है, यहाँ तक लिख लिया ना। न्यूमेरिकल्स देखते हैं, शायद उसमें कुछ समझ में आए। A block of mass 3 kg is lying on a rough surface. A force of 1.5 Newton is applied on the block towards right. यहाँ पे क्या होगा? mg. A force of 1.5 Newton is applied on the block towards right. If the coefficient of static friction is 0.4, calculate the force of friction between the block and the surface. ये तो static friction है ना? So F is equal to mu s times n. यही होता है ना फॉर्मूला? Mu s is 0.4 and n is equal to mg, which is 3 times 10 या फिर 9.8. 10 ले लेते हैं. So 12 Newton. Let's see. Yeah, 11.76. 9.8 लिए इसके लिए. The applied force is less than limiting friction, so the block does not move. In this situation, force of friction is 1.5 Newton. हाँ, मतलब यहाँ पे अगर तुमसे पूछे वो लोग, force of friction between the block and the surface 12 Newton. 12 न्यूटन मिनिमम चाहिए. एग्जैक्टली 12 न्यूटन. ये जो है ना, ये F मैक्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये 12 न्यूटन. इससे तो वो बोलेंगे वो लोग, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, और या फिर बोलेंगे द बॉडी इज एट रेस्ट, या फिर बोलेंगे द बॉडी इज मूविंग, तो ये म्यू के ही होगा. कुछ ना कुछ हिंट देंगे वो लोग. तो मतलब 12 न्यूटन का फोर्स चाहिए मूव करने के लिए, हम अप्लाई कर रहे हैं 1.5 न्यूटन, तो बॉडी डेफिनेटली रेस्ट पे ही रहेगा. A force of 56 Newton is just sufficient to pull a wooden block of mass 10 kg lying on a rough horizontal surface. ये 56 न्यूटन क्या है? F max. कितना है? 56 न्यूटन. मास कितना है? 10 kg. Lying on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction and angle of friction. फिर भी एंगल निकाल सकते हैं ना कोएफिशिएंट से. अगर इसको इंक्लाइन किया तो एंगल भी मिल जाएगा tan थीटा से. सो F मैक्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू टाइम्स n. सो 56 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 100 ले लेता हूं, डिवाइड बाय 100. म्यू इज इक्वल टू 0.56 हो जाएगा यहाँ पे. सही है ना? 0.56. सो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा
सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.56, जो भी एंगल आएगा वो हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, 45 से तो कम ही होगा, काफ़ी कम होगा। tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, मेजर चेंजेस आते हैं। देखते हैं क्या, नहीं भी देते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर 9.8 लेते तो 98 इंटू डिवाइड 56 डिवाइड बाई 98 होता हो, सो दैट विल बी लिटिल बिट मोर, 0.6 आता तो देखते हैं। 0.57 आया हमको, कोई बड़ा चेंज नहीं है। 29 डिग्री 68 मिनट्स, 29.68, 29.68 नॉट डिग्री। ठीक है ना, इजी था ये तो। नेक्स्ट, a mass of 4 kg rests on a horizontal plane, ठीक है। The plane is gradually inclined until an angle of theta is equal to 15 degree with horizontal. The mass just begins to slide. मतलब एंगल ऑफ रिपोज है 15 डिग्री, मतलब म्यू मिल जाएगा। म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ 15 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खरीदा किसी ने? लॉग बुक आज ही जाना उधर, क्या नाम उसका, कृष्णा, उसको बोलना लॉग बुक दो, 15-20 रुपए की आती है, ले लो रखो, ठीक है। अब मुझे निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। tan 15 रेडियंस नहीं, रेडियंस नहीं चाहिए अपने को। tan 15 0.27, 0.27। म्यू आ गया 0.27, म्यू मिल गया। हाँ, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड है विद द हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? बस यही पूछा है, ये क्या मजाक कर रहे हैं क्या ये लोग? 0.27 आकार से बहुत इजी। मैं तो क्या क्या सोच रहा था, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से आएंगे करेंगे, वैसे भी हम करेंगे। A car starts from rest and moves on a horizontal road. The coefficient of friction between the ground and the wheel of the car is 0.6. So mu दिया है, mu k, yes. Find the, a car starts from rest and moves on horizontal road. Starts from rest, yeah, u, 0 meter per second. Find the minimum distance in which it can acquire a speed of 36 meter per second. यहाँ पे क्या होगा पता है? फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा पता है? 0.6 कंटिन्यूअसली उसके मोशन को अपोज करता रहेगा। यही था ना फॉर्मूला, या जी बाय ए था? ए बाय जी था, जी बाय ए था, एम ए बाय एम जी, सही है ना? ए बाय जी, ए आ जाएगा। काम का है ये फॉर्मूला, बहुत काम का है। 0.6 इज इक्वल टू ए बाय जी, नहीं दिया ना, 10 ले लो। सो ए इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया, यू वी एस मिल जाएगा, एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a s। वी कितना है? 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1200 समथिंग, पता नहीं, 36
1296 minus 0 is equal to 2 into 6 into s. s is equal to 1296 divided by 12 करो 10 108 1 12 108 110 अंडरस्टैंडेबल 10 वो लोग ने 9.8 लिया ऐसा है A wooden block of mass 2 kg rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, the floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second. Yields मतलब depress होता है, compress होता है, depress होता है. Yields मतलब give कर, it gives way, it नीचे जाता है वो. ठीक है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है डाउनवर्ड. व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स और फ्लोर डिप्रेसेस. टेक g as 10 meter per second square and identify the action reaction pair in the problem. This is not friction वाला problem. हाँ force on the block. What is the action of the block on the floor before? बिफोर तो बोला नहीं है कुछ. 2 kg रेस्ट. हाँ बिफोर तो वही होगा 2 times 10 20 न्यूटन. आफ्टर क्या होगा? आफ्टर में तुम्हें नेट एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा. Are you sure? 9.9 नहीं 10.1. नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बढ़ जाएगा ना क्योंकि अब वो भी उसको प्रेस कर रहा है. नहीं यार कैसे? नहीं 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 अगर वो नीचे जा रहा है पूरा सिस्टम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है तो रिएक्शन ऊपर होगा. और जब लिफ्ट नीचे जाती है तो क्या होता है? हमको हल्का फील होता है. हाँ तो एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन कम होगा अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि रिएक्शन कम होगा. हाँ 10 minus 0.1 होगा. दिस इज सेम लाइक लिफ्ट इज गोइंग डाउन. लिफ्ट का केस है ना ये भी सेम लाइक दैट. सो 10 minus 0.1 कितना होगा? 9.9 into 25. हाँ 2 kg भी है बट हमको क्या पूछा है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर. हाँ सही है तो 2 kg भी लेना पड़ेगा अपने को. यस क्योंकि दोनों कांटेक्ट में तो दोनों विल बिहेव लाइक अ सिंगल वेट. तो 25 plus 2 that is 27 times 9.9 करके देखो. समझा? देखो इशित अगर एक्सेलरेशन नीचे है ना तो नेट एक्सेलरेशन कम हो जाएगा ऐसा. 264.6 लेट्स चेक. यस 270 लिया है वो लोग ने. 20 न्यूटन था ना पहला लेकिन दूसरा वाला 20. फ्री फॉल कहाँ बोला मैंने? लिफ्ट बोला मैंने. लिफ्ट में फ्री फॉल नहीं होता है. लिफ्ट में डाउनवर्ड जब जाता है तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है तो नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन कम हो जाता है. नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन ही रिएक्शन है.
रिएक्शन कम हो जाता है, मतलब क्या होगा कि ये जो बोल रहा है ना, व्हाट इज द एक्शन ऑन द ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, वो भी तो कम हो जाएगा ना। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हुआ तो ऊपर की तरफ का जो एक्शन है वो कम हो गया, इसके लिए उसका आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स the net weight will be calculated with net acceleration which is 9.9 260 वो लोग ने क्या किया है पता है, पहले 270 लिया है, उसमें से ये माइनस किया है 270 कुछ तो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी सही है अपना भी मेथड। हाँ, समझ में आया क्या ये? डाउनवर्ड मोशन है ना, नेट एक्सेलरेशन जब नीचे की तरफ है तो टोटल एक्सेलरेशन जो रिएक्शन का है वो कम हो जाएगा, रिएक्शन हमेशा अपवर्ड रहता है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हम मैंने बोला था ना तुमको कि अगर हम वेट चेक कर रहे हैं वेइंग मशीन पे, वेइंग स्केल पे, तो वो वेइंग स्केल का जो रिएक्शन है वो हमें वेट दे रहा है। वेइंग वेइंग स्केल अगर रिएक्शन ही नहीं देता, जस्ट लाइक जंपिंग विद अ वेइंग स्केल, अगर रिएक्शन ही नहीं है तो जीरो वेटलेस होगा। सो दैट्स वेट इज नथिंग बट अ रिएक्शन। हाँ, what you are experiencing that is F and what you are seeing that is the weight. ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है। आई थिंक क्या है नेक्स्ट देखना पड़ेगा। पुली नहीं, आई विल नॉट गो हियर ऑल्दो देयर इट्स मच टेक्निकल, तो ये आज तो खत्म होगा नहीं, तो ये मैं क्वेश्चंस रख रहा हूँ सामने, ये भी ट्राई करो। दिख रहा है? थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, फिर भी शेयर तो करूंगा ही। ठीक है ना, अभी तो क्लियर दिख रहा है। आगे आ जा, वैसे ही आधे घंटे की बात है। ऑनलाइन गाइस जो भी है आप लोग वहाँ पे, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा ये पूरा पीडीएफ, तो आप लोग घर से कर सकते हो। ठीक है, Okay, sir. ओके यू कैन लीव नाउ। Thank you, sir. ओके बाय।